Good morning friends and my dear students. In this video we are going to discuss about the monetary policy of the RBI in the unit banking. In banking unit there is a topic that is monetary policy or the credit creation control by the central bank. Let's begin with this. In the previous videos we have already discussed that who is the producer of the money. So the banking system that includes the central bank and the commercial bank as well as the government of India are called the producer of the money or the supplier of the money. The government of India means the 1 rupee coin by the Ministry of Finance, whereas the RBI or the central bank of the country prints the currency of all the denomination, and the commercial bank contributes towards the money supply by creating credit, by advancing loan. So in this video we are going to discuss how the RBI through its monetary policy control the credit creation process in the economy. Monetary policy is the policy framed by the central bank of the country, and it is framed to control the credit creation of the commercial bank or the money, and as well as the money supply in the economy. It is the monetary policy is used to control the situation of inflation and deflation in economy. What is inflation? And inflation is a situation when aggregate demand is more than aggregate supply. जब aggregate demand ज़्यादा है goods and services की as compared to the production of goods and services, then it is called inflation. क्यों ज़्यादा है aggregate demand? Because people have more money in their hand and they want to buy goods and services. और इसका impact क्या होता है? The prices increases at a very high rate. Whereas deflation is the situation when aggregate demand is less than aggregate supply in economy. जब demand goods and services की कम है और production ज़्यादा है, production के comparison में demand कम रह गई है, then it is called deflation. But deflation का मतलब ये नहीं है कि prices कम हो जाएंगे. The prices increases but at a low rate or slow rate. Why demand is less? Reason क्या, demand क्यों कम है? क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं है स्पेंड करने के लिए. दे डोंट हैव द मनी और दे डोंट वांट टू स्पेंड द मनी. दैट्स व्हाई द डिमांड इज लेस. तो ये इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन जो एक सिचुएशन है जिसमें मनी सप्लाई का भी रोल है. अगर मनी सप्लाई ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा इकॉनमी में, तो उससे इन्फ्लेशन होगा, और अगर मनी सप्लाई कम है देन उससे डिफ्लेशन होगा. तो इन सिचुएशन को कंट्रोल, ये दोनों ही अच्छी नहीं है इकॉनमी की हेल्थ के लिए, इनको कंट्रोल करने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेम की जाती है. सो लेट्स सी मॉनेटरी पॉलिसी के इंस्ट्रूमेंट्स कौन कौन से हैं. मॉनेटरी पॉलिसी हैज़ टू इंस्ट्रूमेंट्स, क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स एंड क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स. क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स वो होते हैं जो ओवरऑल मनी सप्लाई को अफेक्ट करते हैं इन इकॉनमी में, यानी अगर इनमें चेंजेस आएंगे तो ये पूरी इकॉनमी में मनी सप्लाई को अफेक्ट करेंगे, ना कि किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर को. जबकि क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स वो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो मनी सप्लाई या क्रेडिट क्रिएशन को अफेक्ट करते हैं फॉर अ पर्टिकुलर सेक्टर ऑफ द इकॉनमी. कई बार एक सेक्टर में ज़्यादा मनी जा रहा है, ज़्यादा लोन क्रिएट दिया जा रहा है एक सेक्टर को, तो उस चीज़ को करेक्ट करने के लिए उस पर्टिकुलर सेक्टर के लिए चेंजेस किए जाएंगे. तो जो इंस्ट्रूमेंट्स सेलेक्टिव सेक्टर्स को टारगेट करते हैं, मनी सप्लाई को अफेक्ट करते हैं सेलेक्टिव सेक्टर्स में, उसे हम क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स कहते हैं. और जो इंस्ट्रूमेंट्स मॉनेटरी पॉलिसी के पूरी इकॉनमी को अफेक्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स. अब इसमें कौन कौन से हैं? बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, CRR, SLR, open market operation. And in qualitative instrument it is margin requirement, credit rationing and moral suasion. Let's discuss one by one. The first come bank rate. बैंक रेट क्या है? ये वो रेट ऑफ इंटरेस्ट है जिसपे सेंट्रल बैंक लोन देता है कमर्शियल बैंक को. सो इट रेफर्स टू द रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच सेंट्रल बैंक गिव्स लोन टू कमर्शियल बैंक. क्लियर? एंड इट अफेक्ट्स द मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट. तो अब मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? इट इज़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच कमर्शियल बैंक गिव्स लोन टू पब्लिक. तो जब कमर्शियल बैंक लोन लेता है सेंट्रल बैंक से और उसे जो इंटरेस्ट देना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड बैंक रेट.
और जब पब्लिक लोन लेती है कमर्शियल बैंक से, और पब्लिक को जो इंटरेस्ट देना पड़ता है कमर्शियल बैंक को, दैट इज कॉल्ड मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट। इज इट क्लियर? तो इसका मतलब है अगर बैंक रेट में चेंज आएगा तो मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट में भी चेंज आएगा। इफ बैंक रेट इंक्रीजेस देन मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट विल ऑल्सो इंक्रीज। जैसे ही बैंक रेट बढ़ेगा, यानी अब ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा कमर्शियल बैंक को, सेंट्रल बैंक को, तो उससे क्या होगा, द कमर्शियल बैंक विल चार्ज मोर इंटरेस्ट फ्रॉम द पब्लिक, और उससे क्या होगा, लोन विल बिकम एक्सपेंसिव, लोन महंगे हो जाएंगे पब्लिक के लिए, और जब लोन महंगे हो जाएंगे सो द पीपल विल डिमांड लेस लोन, सो डिमांड फॉर लोन विल डिक्रीजेस। इससे क्या हो गया, मनी सप्लाई कम हो जाएगी, क्रेडिट क्रिएशन कम हो जाएगा। और ये कब किया जाएगा, दिस इज डन टू करेक्ट द सिचुएशन ऑफ इन्फ्लेशन, क्योंकि इन्फ्लेशन एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें लोगों के पास बहुत ज़्यादा पैसा है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं, तो उनसे वो जो एक्सेस पैसा है, लिक्विडिटी है, वो खींचनी है, इसके लिए बैंक रेट बढ़ा दिया जाएगा। अगर बैंक रेट कम कर दिया जाएगा तो यानी अब कम इंटरेस्ट देने पड़ेगा कमर्शियल बैंक को, सेंट्रल बैंक को, तो इसलिए मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम हो जाएगा। और जब मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाएगा, इट मीन्स लोगों के लिए, पब्लिक के लिए लोन सस्ते हो गए हैं, सो दे विल डिमांड मोर लोन फ्रॉम द कमर्शियल बैंक। और जब डिमांड बढ़ जाएगी लोन की, तो यानी मनी सप्लाई भी बढ़ जाएगी। सो दिस इज डन टू करेक्ट द सिचुएशन ऑफ डिफ्लेशन, क्योंकि डिफ्लेशन में ऑलरेडी लोगों के पास पैसा कम है, इसलिए वो डिमांड कम कर रहे हैं, तो उनको ज़्यादा पैसा देना है, ज़्यादा लोन प्रोवाइड करने हैं। बैंक रेट इज़ फॉर इमीडिएट रिक्वायरमेंट ऑफ लोन, ये बहुत ही शॉर्ट पीरियड अरेंजमेंट होता है, और इसके लिए कोई सिक्योरिटी नहीं रखनी होती है कमर्शियल बैंक को सेंट्रल बैंक के पास। नाउ कम्स रेपो रेट। What is repo rate? It is quite similar to the bank rate, but एक difference है, that is of collateral security. It refers to the rate at which central bank gives loan to commercial bank against government security. देखिए, बैंक रेट में कोई सिक्योरिटी रखने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन रेपो रेट में कमर्शियल बैंक को लोन तो देगा सेंट्रल बैंक, लेकिन उसके एक्सचेंज में, उसके बदले में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ रखनी पड़ेंगी कमर्शियल बैंक को। सो इट्स अ रीपर्चेज रेट, इट इज़ एन एग्रीमेंट, यानी कमर्शियल बैंक एक तरह से अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटी रख रहा है सेंट्रल बैंक के पास, और साथ में ये एक तरह से एग्रीमेंट में कहा रहा है कि वो एक पर्टिकुलर डेट पे ये सिक्योरिटी दोबारा खरीद लेगा सेंट्रल बैंक से। So an agreement is done stating that commercial bank will repurchase the securities on a given date on a predetermined price. जैसे ही रेपो रेट, देखो वर्किंग और बैंक रेट और रेपो रेट की सेम ही है, दोनों की वर्किंग सेम है। जैसे ही रेपो रेट बढ़ेगा तो मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बढ़ेगा। जब कमर्शियल बैंक को ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा लोन पे सेंट्रल बैंक को, तो डेफिनेटली वो ज़्यादा इंटरेस्ट चार्ज करेगा पब्लिक से भी लोन पे, सो लोन एक्सपेंसिव हो जाएंगे एंड पीपल विल डिमांड लेस लोन। सो दिस इज डन टू करेक्ट द सिचुएशन ऑफ इन्फ्लेशन। रेपो रेट कम होते ही मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम हो जाएंगे, सो लोन सस्ते होने की वजह से डिमांड लोन की बढ़ जाएगी, ज़्यादा क्रेडिट क्रिएशन होगा, और ये डिफ्लेशन को करेक्ट करने के लिए किया जाता है। नाउ कम्स रिवर्स रेपो रेट। तो अब तक तो फर्स्ट दोनों बैंक रेट में और रेपो रेट में लोन वाज टेकन बाय द कमर्शियल बैंक फ्रॉम सेंट्रल बैंक, अब इसका रिवर्स हो रहा है। द रेट एट विच आरबीआई or the central bank accepts deposits from the commercial bank is called reverse repo rate. commercial bank के पास अपनी सेविंग्स होती हैं, उनके पास रिजर्व्स होते हैं, तो कई बार वो रिजर्व सेंट्रल बैंक के पास रख देते हैं इन ऑर्डर टू अर्न द इंटरेस्ट। बैंक रेट और रेपो रेट में उन्हें इंटरेस्ट देना पड़ रहा था, लेकिन रिवर्स रेपो रेट में दे आर अर्निंग द इंटरेस्ट फ्रॉम द सेंट्रल बैंक, और इसी को हम रिवर्स रीपर्चेज रेट भी कहते हैं। या एक तरह से गवर्नमेंट ने, सेंट्रल बैंक ने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ रखवाई हैं कमर्शियल बैंक के पास ऑन स्टेटिंग दैट इट विल रीपर्चेज इट एट अ प्री डिटरमाइंड रेट पे, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे। तो जैसे रिवर्स रेपो रेट बढ़ जाएगा, यानी इंटरेस्ट बढ़ गया है, तो कमर्शियल बैंक क्या करेंगे, कमर्शियल बैंक ज़्यादा से ज़्यादा पैसा, अपना जो सरप्लस है वो
सेंट्रल बैंक के पास रखवा देंगे ताकि उन्हें ज़्यादा इंटरेस्ट मिले, उनकी इनकम जनरेट हो, एंड दैट्स वाई दे विल बी लेफ्ट विद लेस फंड्स टू गिव एज लोन टू पब्लिक। उनके पास कम रिजर्व बचेंगे पब्लिक को लोन देने के लिए, इसलिए उनकी क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस पावर कम हो जाएगी। और ये कब किया जाएगा? इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। इफ रिवर्स रेपो रेट इज डिक्रीज्ड, अगर रिवर्स रेपो रेट कम कर दिया जाएगा तो कमर्शियल बैंक को लगेगा कि अब तो ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा नहीं सेविंग्स के ऊपर, तो इसलिए अपने डिपॉजिट्स नहीं रखने हैं सेंट्रल बैंक के पास, और उनके पास ज़्यादा रिजर्व्स बचेंगे पब्लिक को लोन देने के लिए। सो दे विल हैव मोर फंड्स टू गिव क्रेडिट, एंड दिस इज डन टू करेक्ट द सिचुएशन ऑफ डिफ्लेशन। एक तरह से रिवर्स रेपो रेट को डिक्रीज करके सेंट्रल बैंक डिस्करेज कर रहा है कमर्शियल बैंक को कि वो सेंट्रल बैंक के पास पैसा कम रखे और पब्लिक को पैसा ज़्यादा दे। नाउ कम्स द नेक्स्ट, open market operation. Open market operation is one of the function of the central bank also. जो bankers to the government में हमने पढ़ा था कि central bank as act as an advisor, agent and the treasurer of the government, उसी में एक function था as an agent। तो as an agent क्या काम है central bank का? It buy and sell the government securities. So what is open market operation? It refers to sale and purchase of government securities by central bank on behalf of government. तो government को जब पैसे की ज़रूरत होती है तो वो government securities इशू करती है, जैसे नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स वगैरह, और उनको बेचने और ख़रीदने का काम किसका है? सेंट्रल बैंक का है। अब जैसे ही सेंट्रल बैंक सेल करेगा सिक्योरिटी, तो एक तो बात यह है कि सेंट्रल बैंक नेवर डील्स विद द पब्लिक डायरेक्टली, लोगों से डायरेक्टली डील नहीं करता है, इट डील्स विद कमर्शियल बैंक एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। तो वो सेंट्रल बैंक किसको सेल करेगा सिक्योरिटी? कमर्शियल बैंक और अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को। उससे क्या होगा? कमर्शियल बैंक के पास जो पैसा था वो अब चला गया सेंट्रल बैंक के पास, और लिक्विडिटी कम हो गई है, उनके पास कैश कम बच रहा है लोन देने के लिए, तो वो लोन कम दे पाएंगे, उनकी क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी कम हो जाएगी। तो अगेन ये कब किया जाएगा? इन्फ्लेशन में। और जब सेंट्रल बैंक खरीदता है सिक्योरिटी कमर्शियल बैंक से, तो उससे क्या होगा? अब कैश ट्रांसफ़र होगा फ्रॉम सेंट्रल बैंक टू कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक के पास ज़्यादा लिक्विडिटी आ जाएगी, ज़्यादा रिजर्व्स आ जाएंगे लोन देने के लिए, और इससे उनकी क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी बढ़ जाएगी एंड दे विल बी एबल टू गिव मोर लोन टू दी पब्लिक। और ये कब किया जाता है? दिस इज़ डन टू करेक्ट द सिचुएशन ऑफ डिफ्लेशन। Now comes cash reserve ratio. What is cash reserve ratio? It refers to the minimum percentage of banks' total deposits to be kept with central bank. बैंक को अपने डिपॉजिट्स जो वो रिसीव करते हैं पब्लिक से, उसका एक परसेंटेज सेंट्रल बैंक के पास रखना होता है, जिसे हम कैश रिजर्व रेशियो कहते हैं। जैसे CRR इंक्रीज कर दिया जाता है, इट मीन्स कमर्शियल बैंक हैज़ टू कीप मोर डिपॉजिट्स विद सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक को ज़्यादा पैसे रखने पड़े, कमर्शियल बैंक को ज़्यादा पैसे रखने पड़ेंगे सेंट्रल बैंक के पास, और उनके पास पैसे कम बचेंगे फॉर गिविंग एज लोन टू द पब्लिक। एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि अगर CRR 10% है और बैंक ने 1000 रुपये रिसीव किया एज अ डिपॉजिट फ्रॉम अ कस्टमर, तो इसका मतलब है बैंक को 100 रुपये सेंट्रल बैंक के पास रखने हैं और 900 रुपये एज अ लोन वो यूज़ कर सकता है। लेकिन अब सेंट्रल बैंक ने कहा कि CRR 20% कर दिया गया है, तो इसका मतलब है कि 1000 रुपये का 20% यानी 200 रुपये अब सेंट्रल बैंक के पास रखा जाएगा, और अब सिर्फ उसके पास 800 रुपये बचेंगे फॉर गिविंग एज लोन। तो पहले 900 थे और अब 800, यानी उसके रिजर्व्स कम हो गए हैं, उसके पास पैसा कम बच रहा है फॉर गिविंग एज लोन टू दी पब्लिक। तो उसकी क्रेडिट क्रिएशन, कमर्शियल बैंक की क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी कम हो गई है। तो ये कब किया जाएगा? इन्फ्लेशन को डील करने के लिए। और जब CRR डिक्रीज कर दिया जाएगा तो उस कमर्शियल बैंक के पास ज़्यादा पैसा बचेगा for giving loan to the public. Now comes the SLR. What is SLR? Statutory liquidity ratio. So it refers to a percentage of total deposits that a commercial bank has to keep with itself in form of liquid assets. Liquid assets are those which can be converted into cash
वेरी शॉर्टली, जो बहुत जल्दी कैश में कन्वर्ट हो जाए, जैसे कैश खुद लिक्विड एसेट्स है, गोल्ड होगी, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हो गई। तो ये वो परसेंटेज है टोटल डिपॉजिट्स का जो एक बैंक को अपने पास ही रखना पड़ता है रिजर्व में, और वो उसे यूज़ नहीं कर सकता फॉर गिविंग एज लोन। तो सीआरआर और एसएलआर में क्या फ़र्क है? सीआरआर में वो पैसा किसके पास रखना था? सेंट्रल बैंक के पास, जबकि एसएलआर में ये पैसा कमर्शियल बैंक अपने पास ही रखेगा इन फॉर्म ऑफ लिक्विड एसेट्स। दोनों की वर्किंग सेम है, सीआरआर और एसएलआर की वर्किंग सेम है। अगर एसएलआर बढ़ा दिया जाएगा, इसका मतलब है कमर्शियल बैंक के पास अब अपने पास ज़्यादा पैसा रखना पड़ेगा एज अ रिजर्व, और लोन देने के लिए पैसा कम बचेगा। और जैसे ही एसएलआर कम कर दिया जाता है, इसका मतलब है अपने पास रिजर्व में कम पैसा रखना है और पब्लिक को लोन देने के लिए उसके पास पैसा ज़्यादा बचेगा। तो एसएलआर कब बढ़ाया जाता है? इन्फ्लेशन को ठीक करने के लिए। और एसएलआर कब डिक्रीज किया जाता है? डिफ्लेशन को ठीक करने के लिए। So these were the quantitative instruments. Now we are discussing the qualitative instruments. What are qualitative instruments? Which affects the money supply in the selective sectors of the economy. इनमें अगर कोई चेंज आता है तो ये पूरे सेक्टर्स को, सभी सेक्टर्स को अफेक्ट नहीं करते हैं, ये सेलेक्टिव सेक्टर्स को ही अफेक्ट करते हैं। और इसमें सबसे पहले है मार्जिन रिक्वायरमेंट। वो मार्जिन रिक्वायरमेंट किससे रिलेट करते हैं? जब कमर्शियल बैंक के पास कोई भी पब्लिक, कोई इंसान लोन लेने जाता है तो हमें पता है लोन हमें ऐसा ही नहीं मिलता, वी हैव टू कीप एज अ समथिंग एज अ कोलेट्रल सिक्योरिटी। क्या होता है कोलेट्रल सिक्योरिटी? कि इन केस द पर्सन इज़ नॉट एबल टू रिफंड द लोन, तो बैंक के पास कोई ऐसा प्रॉपर्टी या कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे बेचकर वो अपना लोन रिकवर कर सकें। दैट इज़ कॉल्ड कोलेट्रल सिक्योरिटी। और ये हमेशा असर्टेन है कि जो भी कोलेट्रल सिक्योरिटी रखी जाएगी, जो भी चीज़ एज अ कोलेट्रल सिक्योरिटी रखी जाएगी, बैंक उसकी वैल्यू हमेशा लेस ही लगाएगा, उसकी फुल वैल्यू नहीं लगाई जाएगी। अगर सपोज़ आप एक लोन ले रहे हैं और आपने बैंक के पास अपनी प्रॉपर्टी रखी है, घर रखा है जिसकी वर्थ 1 करोड़ है, तो बैंक कभी भी आपको 1 करोड़ का लोन नहीं देगा, हमेशा उससे कम लोन देगा। यानी that is, and that difference between the value of the collateral security offered for the loan and the actual amount of the loan granted is called margin requirement. तो घर की वैल्यू थी, वर्थ थी 1 करोड़, जबकि लोन मिला आपको 80 लाख का, तो यानी ये जो 20 लाख है दैट इज कॉल्ड मार्जिन रिक्वायरमेंट। यानी कितना हो गया? 20%। यानी मार्जिन रिक्वायरमेंट अगर 20% है, इसका मतलब 100 रुपये के लोन कि जो आप सिक्योरिटी रखेंगे, 100 रुपये की सिक्योरिटी पे आपको सिर्फ 80 रुपये का ही लोन मिलेगा। दैट इज कॉल्ड मार्जिन रिक्वायरमेंट। सो व्हाट इज मार्जिन रिक्वायरमेंट? इट्स अ डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ collateral security offered for a loan and the actual amount of loan granted. अगर मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ा दिया जाता है, सपोज 20% था, अब 30% है, तो इसका मतलब है 100 रुपये की कोलेट्रल सिक्योरिटी है जिसकी वैल्यू 100 रुपये है, उस पर आपको लोन कितना मिलेगा? सिर्फ 70 रुपये मिलेगा, 30 रुपये उसका डिफरेंस है। तो यानी अब क्या हो गया? लोगों को लोन का अमाउंट कम मिल रहा है, सो दे विल बी डिस्करेज टू अप्लाई फॉर द लोन। और ये कब किया जाता है? दिस इज डन टू टैकल द सिचुएशन ऑफ इन्फ्लेशन। लेकिन अगर मार्जिन रिक्वायरमेंट कम कर दिया जाए, यानी पहले 20% था, अब 10% है, यानी 100 रुपये की कोलेट्रल सिक्योरिटी पे अब लोन कितना मिलेगा? 90 रुपये का लोन मिलेगा। सो पीपल विल बी एनकरेज टू अप्लाई फॉर द लोन, दे विल डिमांड मोर लोन्स, दे विल डिमांड मोर क्रेडिट, and as a result the money supply will increase, and this is done to correct the situation of डिफ्लेशन। तो मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ा दिया जाता है इन्फ्लेशन में और मार्जिन रिक्वायरमेंट कम कर दिया जाता है डिफ्लेशन में। नाउ कम्स द नेक्स्ट, क्रेडिट राशनिंग। व्हाट इज राशनिंग? राशनिंग को लिटरेरी मीनिंग क्या होता है? कि क्वांटिटी फिक्स कर देना। इज इट क्लियर? तो क्रेडिट राशनिंग में क्या हो रहा है कि सेंट्रल बैंक इज सेइंग दैट इट इज़ फिक्सिंग द परसेंटेज ऑफ लोन गिवन फॉर अ पर्टिकुलर एक्टिविटी। जो डिफरेंट बिजनेस एक्टिविटीज़ हैं या डिफरेंट सेक्टर्स हैं उनके लिए एक लिमिट फिक्स कर दी गई है। कमर्शियल बैंक को डायरेक्टिव्स दिए जा रहे हैं कि आप इससे ज़्यादा लोन नहीं दे सकते हैं उस एक्टिविटी के लिए। स्पेशली ये स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज़ को टैकल करने के लिए किया जाता है। अब ये स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज़ होती क्या हैं?
जब लोग डिमांड करते हैं, व्हाट इज स्पेकुलेशन? स्पेकुलेशन मीन्स टू अर्न द प्रॉफिट, आप प्रॉफिट कमाना चाहते हैं बिकॉज ऑफ द चेंज इन प्राइस ऑफ समथिंग, किसी कॉमोडिटी, किसी शेयर के प्राइसेस में जो चेंज आने की वजह से आप प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, दैट इज़ कॉल्ड स्पेकुलेशन एक्टिविटी। तो जब ये आपकी उसमें कॉमोडिटी ट्रेडिंग में भी होता है, या आपके शेयर्स एंड डिबेंचर्स में भी होता है कि लोग शेयर्स खरीदते हैं क्योंकि आज उनका प्राइस कम है, कल उनका प्राइस बढ़ जाएगा तो उसको बेच देंगे, दैट इज़ कॉल्ड स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज़। तो स्पेशली क्रेडिट राशनिंग को किया जाता है फॉर कंट्रोलिंग स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज़। और जिस बिजनेस एक्टिविटीज़ में लोन ज़्यादा जा रहे हैं, बैंक ज़्यादा लोन दे रहा है, तो उसको भी कंट्रोल करने के लिए स्पेकुलेटिव क्रेडिट राशनिंग की जाती है। और द कमर्शियल बैंक कैनॉट एक्सीड दैट कोटा, दैट लिमिट फिक्स, एक तरह से लिमिट फिक्स कर दी गई है और कमर्शियल बैंक उससे ज़्यादा लोन नहीं दे सकते उस पर्टिकुलर एक्टिविटी के लिए। इज इट क्लियर? और जब लगता है कि उस सेक्टर में मनी सप्लाई कम हो रही है तो ये क्रेडिट राशनिंग हटा दी जाती है, ये लिमिट रिमूव कर दी जाती है। तो किसी सेक्टर में अगर या किसी एक्टिविटी, बिजनेस एक्टिविटी में ज़्यादा क्रेडिट दिया जा रहा है तो ये लिमिट फिक्स कर दी जाती है, और अगर किसी सेक्टर में क्रेडिट कम दिया जाता है तो ये लिमिट हटा दी जाती है, क्रेडिट राशनिंग रिमूव कर दी जाती है। नाउ कम्स द लास्ट, दैट इज मॉरल सुएशन और परसुएशन, यानी समझाना। इसमें क्या है, सेंट्रल बैंक एडवाइस देता है, डायरेक्टिव्स देता है, सजेशन करता है, ओपिनियन करता है, क्योंकि सेंट्रल बैंक इज द अपेक्स बैंक, इट इज़ द हेड ऑफ ऑल द कमर्शियल बैंक, सो एंड इट इज़ द लैंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट। तो कमर्शियल बैंक को उसकी बातें सुननी पड़ेंगी। तो जब सेंट्रल बैंक को टाइम टू टाइम सेंट्रल बैंक डायरेक्टिव्स देता है, ऑर्डर्स देता है, एडवाइस देता है कमर्शियल बैंक को to be liberal in giving loan during deflation and to be you can say strict in their lending during inflation। तो इन्फ्लेशन को टैकल करने के लिए सेंट्रल बैंक क्या कहेगा कमर्शियल बैंक को कि आप अपनी लैंडिंग्स को, अपने क्रेडिट्स को कंट्रोल कीजिए, स्ट्रिक्ट रहिए। और डिफ्लेशन में वो कहेगा कि आप थोड़े लिबरल रहिए लोन देने के लिए। सो जो ये डायरेक्टिव्स हैं, ये जो ऑर्डर्स हैं, ये जो सजेशंस दिए जा रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड मॉरल सुएशन। So in this topic we have covered the quantitative instrument as well as qualitative instruments. I hope आपको ये topic clear हो जाएगा, and I will share the quiz link, based on this topic also. Do like, comment and share the video. Thank you. Have a nice day.